Assalamu alaikum. मेरा नाम अमानुल्लाह है. I'm a consultant at Carnelian. I have Asif Khan with me today. He's a senior consultant and a trainer at Carnelian. आपने उनको देखा होगा, इनकी videos आजकल आ रही हैं काफी on different aspects on behavior skills specifically. आज हम लोग बात करेंगे on the importance of vision and values for an institution, for an individual. स्पेसिफिकली इन दिस टाइम जो अभी हमारा पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ज़रूरी है या नहीं है, अगर हैं तो क्यों है, और ये होती क्या है, इनसे इन पे काम कैसे किया जा सकता है. आसिफ, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन वी कैन स्टार्ट. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मानुल्ला आपके तारुफ का. मेरा नाम आसिफ है, जिस तरह से मानुल्ला ने बताया. वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कार्निलियन. 8 साल से हम इस इदारे के साथ काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ कंसल्टिंग का काम करते हैं, एचआर का काम करते हैं, ट्रेनिंग का काम करते हैं. और आज हम विजन, मिशन और वैल्यूज के बारे में बात करने आए हैं. एंड परहैप्स अमानुल्ला इज, ये थोड़े मॉडरेट हो रहे हैं, ही इज परहैप्स मोर ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन दिस देन आई एम, because he's done a lot of consulting assignments with a lot of clients. Inshallah, this is going to be fun. Manu, over to you. Right. So I'll be asking questions and then sharing my research on these topics as well, and then discussing those. So the first question for Asif, you is, what is a vision and what are values? Fantastic. तो भाई सादा आदमी है. Vision comes from vision, which is vision. So my ability to see is my vision. Vision को उठा के जब आप बिजनेस में ले आते हो, तो obviously it's an ability to see beyond oneself. तो मेरा विजन जो है वो दूसरी चीज़ों का होता है, आगे का होता है, पीछे का होता है. Similarly, in organizations, the vision is just looking ahead. Specifically in organizational context, ये looking far ahead हो जाता है. So it's a far-reaching goal, something that perhaps can never be achieved. जिस ज़माने में मैं अपनी डिग्री कर रहा था, उस ज़माने में never be achieved था. आजकल कहते हैं कि पता नहीं 30 साल में अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त तेज गुजर रहा है और दुनिया सुकड़ रही है, तो ये चीज़ें, चेंजेस जो हैं ये आ रहे हैं. But just a goal in the future, direction, north star, qibla, जिसे हम कहते हैं, I think is layman's understanding. बिल्कुल ठीक है. So just combining with it the HBR definition of a vision statement, which is, it is what the organization wishes to be like in some years' time. It's usually drawn up by senior management in an effort to take the thinking beyond day-to-day activity in a clear, memorable way. For example, Ericsson है जो company, उनका vision statement है, the prime driver in an all communicating world. As you said कि एक डायरेक्शन मिल जाए, इट शुड बी वेरी क्लियर, मेमोरेबल, ताकि हर इंसान को ये ना हो कि फाइनेंस वाले को या एचआर वाले को सिर्फ समझ आ रही है और बाकियों को नहीं आ रही. एंड यूजुअली ड्रॉन अप बाय द सीनियर मैनेजमेंट. आपने जो डेफिनेशन बताई थी उसमें आई थिंक यू सेड समथिंग लाइक बियॉन्ड डे टू डे एक्टिविटीज, व्हिच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट एंड इट्स टेलिंग, बिकॉज ये देन बिकम्स समथिंग जो शायद आपके मंडेन काम को मायने खेज बनाती हो. So it also needs to be something, not only is it a direction, it is perhaps also something that will inspire people or keep them engaged in HR language. आई थिंक इसका वो लिंक भी बनता है एडम स्मिथ के साथ, जिन्होंने जब अपनी किताब लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज आप इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं. पहले जो मजदूर था वो पूरा प्रोडक्ट बनाता था, अब वो सिर्फ एक कील बनाएगा और कील ही बनाता रहेगा. So in that day-to-day activity on the factory line, it sometimes get very difficult to relate to the vision of the company. So it's very important to have that statement that written down somewhere and communicated repeatedly. जहाँ पे I think हमारे जैसे इदारे आते हैं to help communicate that vision to the employee base. And I think values में जाने से पहले I would also want your opinion on why is it important? Why should we have a vision or a statement? So if it's a direction, so it's as simply as, if I don't know where I'm going, any road's gonna take me there. मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी सिम्त का तयन करना पड़ेगा कि मैं जाना कहाँ चाह रहा हूँ. And मैं in this case is an organization जिसे हम एक entity मानते हैं, which is a going concern. So I think just in establishing that direction, because without that you cannot ascertain progress. आपको नहीं पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. यू विल बी मूविंग इन सम डायरेक्शन,
but moving in that direction is what progress is going to look like. And therefore, apart from the engagement वाला angle जो already हमने discuss किया कि लोगों को engage रखती है, मायने देती है काम को, as a business it's important because it gives you a measurable standard with which you can perhaps gauge where you are. मुस्तफ़ा जो वन ऑफ आवर ट्रेनर्स ये कहता था कि आप एक कश्ती पे बैठे हैं और आपको नहीं पता आपने जाना कहाँ है, तो आप बस हर जगह पे ही चलाते रहेंगे अपना चप्पू, और जहाँ भी पहुंचेंगे आप बोलेंगे बस शायद यहीं आना था। तो आपको वो फोकस्ड एफर्ट, एक पूरा इदारा जब काम कर रहा होता है, तो इट्स मोर लाइकली टू रीच द डेस्टिनेशन। और रिसर्च भी यही कहती है, तो द कंपनीज दैट एंजॉय एंड्यूरिंग सक्सेस हैव कोर वैल्यूज एंड कोर पर्पस, जिसको मिलाकर एक विजन बनता है, और वो फिक्स रहते हैं, मगर उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होती रहती है। तो चांद पे तो जाना है, मगर हो सकता है कि रॉकेट शिप ले जाए, हो सकता बलून ले जाए, तो इट डजंट रियली मैटर कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कौन से मुल्क से टेक ऑफ कर रहे हैं, आप कौन सा बंदा वो चला रहा है। as long as you know the destination, you can always have that flexibility in strategy, and it's more likely. तो कुछ इदारों के एग्जांपल है HP, 3M, Johnson and Johnson. These are companies that have achieved superior long-term results, and they have there's this correlation. तो I think ये थोड़ा सा आता है कि जरूरी क्यों है, और स्ट्रेटजी चेंज होती है। इससे हम लोग आई थिंक ट्रांजिशन करते हैं the breakdown of a vision. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, that we having a code that is fixed, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका विजन है, and then also having that flexibility, तो वो बैलेंस कहाँ से आता है और कैसे आता है? Okay, so core और ये जो अल्फाज अभी इस्तेमाल हुए flexibility वाला और fixed core वाला, I think that comes from this idea that Kamran bhai also keeps mentioning, preserve the core and stimulate progress. Jim Collins है ये भी? I think it's Jim Collins, yes. The idea there is कि आपको डायरेक्शन पे या कहाँ जाना है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, लाइक यू सेड विजन पे आप फैसला कर लेते हो, मतलब आप फेज 5 से निकलते हो और आप कहते हो कि भाई मैंने वाई ब्लॉक जाना है, तो आपने डिसीजन या डायरेक्शन का डिसीजन ले लिया है। अब रास्ते में कोई वो अंडरपास बन रहा है या कहीं कोई ट्रैफिक जैम हुआ है या कुछ हुआ है, तो आप किसी मोहल्ले में घुस जाते हो, किसी गली में से निकल के आ जाते हो, किसी which is I think what keeps changing. And if we add on to this analogy, then perhaps it's your value कि आपने ये फैसला तो किया है कि यार रॉन्ग वे नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कोशिश करूंगा कि सही रास्ता कोई निकालूं, ताकि so taking the other way but within certain restraints which perhaps are set by your values and getting to that the original direction that you decided. So I think that's why it's important. It's also important to define what not to change and what to change, क्योंकि वहाँ पे I think एक confusion का element आ जाता है मैनेजमेंट में। इसमें जो रिसर्च है वो ये कहती है, जो HBR की रिसर्च है, कि आर्टिकुलेटिंग अ विजन में जो आपकी कोर आइडियोलॉजी होती है वो फिक्स रहती है, और आपका एनविजन्ड फ्यूचर चेंज होता रहता है, और उसमें आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या चाहिए। तो जो कोर आइडियोलॉजी है उसको समझना, उसमें कोर आइडियोलॉजी में कोर वैल्यूज आती हैं और पर्पस आता है। ये क्यों हम लोग फिक्स रखते हैं और इसको कैसे फिक्स रखा जाता है, और जो एनविजन फ्यूचर है उसमें वो कहते हैं कि आपके बिग हेरी ऑडिशियस गोल्स आते हैं, विविड डिस्क्रिप्शन आती है, इतने $1 मिलियन हमने अचीव करना है, 2 नए आउटलेट्स खोलने हैं, ये दिस कैन चेंज योर प्रोडक्ट, इवन कैन चेंज। इस पे जस्ट शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस। I think for the ones that are fixed, for the purpose and the values are usually born out of the founders or the innovators or the people who are leading the business. वो लोगों से निकलता है, whereas आपने जो जो चेंज कर सकते हैं वो बिट जो है उस पे ज्यादा असर मार्केट का होता है, because that is more part of your strategy. आपको अपनी competitive landscape देखनी होती है, आपको अपना पोर्टर्स फोर्सेस चेक करनी होती हैं, उसके हिसाब से आपको ये तयन करना होता है कि अच्छा व्हाट इज डूएबल, व्हाट इज नॉट डूएबल, हाउ आर वी गोना। बट द इनिशियल पार्ट आई थिंक कम्स आउट ऑफ the vision or the view and the ideas of the people who are setting up or running that business. And obviously with values there's principles that you kind of decide कि भाई हम इनके अंदर ही काम करेंगे। हालांकि ये completely सच नहीं है कि आपकी values जो हैं वो बिल्कुल ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से खाली होती हैं, बिकॉज काफी सारे इदारे अपनी वैल्यूज को अपग्रेड करते हैं
जब मार्केट डायनामिक्स चेंज होती हैं, जब इदारे का नेचर चेंज होता है, तो आप दोबारा असेस करते हो अपनी वैल्यूज को और ये समझने की कोशिश करते हो कि करंट कॉन्टेक्स्ट में ये चीज क्या इतनी ही वैलिड है या नहीं है, एंड हाउ डू वी मेक इट बेटर. बट दीज आर वेरी ट्रिकी एक्सरसाइजेस, क्योंकि at one end your set of values needs to be consistent. In certain cases perhaps there are big disruptions that happen जिसकी वजह से शायद कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं. For example, I'd say for the longest time the automobile industry may not need or focus on a lot of innovation or creativity. उनकी total quality management और उनका Six Sigma और उनका making sure no wastage is there were things that kept them going and got them good results. But with electric cars coming in and self-driving cars coming in and a complete reimagining, so a completely new way of looking at an industry comes in, and then maybe you have to look at कि अच्छा यार हो सकता है कि अब वो values जो हैं वो हमें उतनी अच्छी तरीके से serve ना कर रही हों, and maybe we need to redo them. Lekin this needs to be done very carefully as well. You can't just take out values and put in values. And this entire values discourse, by the way, it's just there is so many things happening. There are so many organizations doing so many things that it's very, very contextual. There are no general answers. There is no generic framework. देख के इंडस्ट्री के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, कंपेटिटिव लैंडस्केप के हिसाब से सारी चीजें देख के और फिर आप हिसाब लगाते हो कि आपने क्या. जो आपने पहली बात की on discovering your values, I think वो यही मैंने भी पढ़ा कि आप values ऐसी चीजें या बल्कि आपकी core ideology ऐसी चीज है जो आप discover करते हैं और आपकी vision statement या आपके goals जो हैं या strategies हैं जो आप create करते हैं. So you discover your purpose, you discover your values. अगर मेरी value है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो चाहे मार्केट डायनामिक्स जितने मर्जी बदल जाएं, दैट वैल्यू विल स्टिल रिमेन देयर अनलेस मैं इंटरनली मेरे अंदर एक शिफ्ट आ जाए. तो इट्स एटलीस्ट दिस लाइन. सॉरी, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होने लगा हूं, मैं वाकई इंटरेस्टेड हूं. तो जब हम कहते हैं कि ये हम डिस्कवर करते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ डिस्कवर करते हैं? So it's inside you, and it's something that is inherent in your personality. मतलब अगर कुछ researches तो ये भी कहती हैं values is who you are. तो वो जो the who am I वाला सवाल है, क्या मैं memory हूँ, क्या मैं experiences हूँ, क्या मैं body हूँ. तो it also can boil down to your values. कि अगर value system वही होगा, then that is what makes आसिफ. तो ये एक है जो आपने कहा कि थोड़ा external भी होता है. उससे थोड़ा रिसर्च जो है वो साइड पे है कि नहीं, जो वैल्यूज हैं वो डिस्कवर होती हैं. हाँ, अगर आप वो बना रहे हैं खुद से तो शायद वो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता. इंटरेस्टिंग थॉट. इट्स जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट. मुझे नहीं लगता इसका कोई जवाब है हमारे पास, हमें देना भी नहीं चाहिए. लेकिन अगर मैंने एक इदारा चलाया और मैंने अपनी वैल्यूज को उस इदारे की वैल्यूज बनाया, तो जब भी मैं लोगों को ढूंढने निकलूंगा टू हायर पीपल टू वर्क विद मी, टू लुक फॉर पीपल हु आर गोना हेल्प मी इन दिस मिशन, आई एम गोना एंड अप लुकिंग फॉर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज. सो एन अलाइनमेंट इन द वैल्यूज, राइट? सो एन अलाइनमेंट इन द वैल्यूज वुड मीन कि ये 1, 10, 100, 1000 मेरी तरह का या मेरी वैल्यूज का बंदा सेटअप में आ गया. Now the advantage there is obviously that everyone understands same things. या सबको पता है कि अच्छा हमारी क्या values हैं, हमने क्यों इनको follow करना है, ये क्यों जरूरी है, X, Y, Z. But is there a case to be made for diversity in this? That is an interesting thought. इसमें जो मेरा opinion है, based on what I've read, is that it's good not to have diversity in values. So it's a bit counterintuitive, I think, and politically correct कितना है ये I don't know. बट वैल्यूज पे वो कहते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज हैं जो कि एक हैं पूरी कंपनी की, then it doesn't really matter कि वो हैं क्या. There are no good or bad values according to research. If Asif and I and whole of Carnelian is aligned on these 4 values or 5 values, then it will help us reach our vision. It's a high probability of reaching our vision. अगर हमारी इख्तलाफ होगा वैल्यूज पे तो हम लोग एक टीम बनकर काम नहीं कर सकेंगे उस विजन की तरफ. तो ये गुड और बैड अगर हम कह रहे हैं कि नहीं होती, तो हम कह रहे हैं works or not works होती हैं. It's about the alignment. So if there's no right value that works for a company, the same value can work for one company and not work for the other company if everyone is aligned on it. That is what research claims. इस बात पे बहस नहीं करें कि वैल्यू क्या है, बस अलाइन हो जाए. Yes, that is what Jim Collins say.
इसी से आई थिंक जरूरी है डिफाइन भी करना कि वो वैल्यू को कहता क्या है, वो है क्या वैल्यू. What is the value? Yeah. It's good to define value. So how Jim Collins defined value is that if you are thinking whether or not to follow a practice because it will have a business result, then it is a strategy. If you're not thinking about the business result, it can be a good business result or a negative business result based on this practice. तो फिर वो वैल्यू है. अगर मेरे सच बोलने से बिजनेस को फायदा होता है और मैं सच इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो देन इट्स अ स्ट्रेटजी. कल को बिजनेस को फायदा नहीं होगा तो मैं झूठ बोलूंगा. मगर अगर मैं सच इस वजह से बोलता हूँ बिकॉज सच तो बोलना होता है, इट्स द अंडरलाइंग self-evident truth जो हमने मानी हुई. So that is how he defines and a lot of literature defines values. Now I'm thinking all the conversations that we've heard and sometimes we've done around the idea of interdependence. We need to be good and we need to give, we need to share, we need to XYZ. अगर यहाँ पे हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाए ना तो फिर तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये गुफ्तगू जब भी होती है कॉर्पोरेट सर्कल्स में और जो भी बेचारा कर रहा होता है 100 लोगों के सामने कि नहीं नहीं अच्छे बने, देखिए कोई मसले की बात नहीं है, देखिए सबर से अच्छे तरीके से काम करें, उसको या प्रेशर इतना होता है आगे से या आई डोंट नो, बट दे एंड अप सेइंग इससे लॉन्ग टर्म में आपको ही फायदा होगा. So they end up connecting it to business results. They don't have a choice. Because if they don't connect it to business results, then there's lots of people who are very जो realistic लोग होते हैं, जो practical लोग होते हैं, आपसे कहते हैं भाई आप ये क्या बातें कर रही हैं, बिजनेस बंद हो जाएगा, ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा. तो जिम वाला फ्रेमवर्क अगर हम लें तो उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं दोनों होना चाहिए. मतलब मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ हमारी क्या है जनरली. बिकॉज हम कहते हैं कि देखें सच बोलें बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू बट इट विल आल्सो हेल्प योर बिजनेस. मगर इसका एक वो भी है कि इफ इट हेल्प्स विद द अलाइनमेंट, इट एक्चुअली शोज के शायद वैल्यूज का इख्तलाफ है जहाँ पे बिजनेस रिजल्ट को आपको यूज करना पड़ रहा है. जहाँ पे बिजनेस रिजल्ट को यूज, जहाँ पे अलाइनमेंट होगी वहाँ पे यू वुडंट इवन हैव टू हैव दैट डिस्कशन बिकॉज एवरीवन नोज दैट इट इज द सेल्फ एविडेंट ट्रूथ. आई थिंक इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा ऑन अगेन वैल्यू की डेफिनेशन मैंने तो बता दी, मगर उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन एचबीआर कोट करता है वो है कि and Coca-Cola I think defined it as they serve as a behavioral compass. जैसे कोक की वैल्यू में है the courage to shape a better future, leveraging collective genius, being real and being accountable and committed. If everyone is aligned to these values तो फायदा होगा कंपनी को, और अगर नहीं है तो फायदा नहीं होगा. But everyone do have a set of values even if they want it or not. सबकी वैल्यूज तो होती हैं. ठीक है, तो अगला जस्ट ये जो वैल्यूज की गुफ्तगू थी इसमें जस्ट वन मोर ख्याल that I keep thinking of and that I haven't been able to crack it yet and maybe you will or some of the audience will. इसके values में the way that I mean if you think about it, perhaps there needs to be a hierarchy. Perhaps there need to be higher order values and lower order values because there may be instances where teamwork and integrity may collide. There may be instances where innovation and well-being may cross paths, whatever values you have. In that case, one ought to take precedence over the other. In my view, in theory, in management theory, that's a gap that I don't know if it's been filled. Maybe मेरी सोच मुकम्मल नहीं है, शायद मैं कुछ मिस कर देता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ. But in philosophical discourse, जब भी हम बात करते हैं virtues की या अच्छी चीजों की या values, so there's always a hierarchy. There's one that takes precedence over the other so that there is a clear understanding of कि भाई सबसे अहम क्या चीज है. अब पानी भी जरूरी है, जग भी जरूरी है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा जरूरी है. किसी के लिए पानी जरूरी है, किसी के लिए जग जरूरी है. Which one do you choose? I think that's something that's missing. That perhaps is a food for thought for everyone watching. That's interesting because I haven't read anything on this for अभी तक कि वैल्यूज के अंदर हायरार्की क्या होती है. हमने जो एक्सरसाइजेस की हैं विद डिफरेंट कंपनीज उसमें वी हैव सीन दैट हम अगर रैंकिंग दें तो दे कैन क्लियरली पुट देम इनटू अ रैंक के नहीं टीम वर्क इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए जितना सच बोलना या ईमानदारी, इंटेग्रिटी. आई थिंक आई वांट टू also understand what is your opinion on the purpose of a person or a company. What is the purpose? How is it different from values and vision? And what role does it play in our day-to-day life? I think the word there is raison d'être that I learned in this organization. I think it was Kamran or Shireen Appa that used it. But purpose is, what are you going to do? What are you going to do while you're
working. So जहाँ values को हम कह रहे थे कि how are you going to go about things, purpose is more towards the what, कि मेरा काम क्या है, मेरा मकसद Hmm. क्या है. I mean, a religious person would say मेरा मकसद इबादत करना है. So there's an action. It's an active thing that they're supposed to do, and then they're supposed to do it in everything that they do. तो उनका Hmm. उठना हो गया, उठना भी इबादत, बैठना भी इबादत, ये भी इबादत, वो भी इबादत, सारी कहानी. Similarly, purpose in an organization or for an organization should ideally be active and should be something that has a wide application, जो हर जगह आप कर सकते हो. मुझे अपना ही जहन में आता है पर्पस बार बार जो हमने बताया हुआ, कन्वे मीनिंग क्रिएट सिग्निफिकेंस. सो इन वट एवर कॉन्वर्जेशन यूर हैविंग, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद यू, ताज भाई इज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद मी, पड़ोस वाले दफ्तर के लोग आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद अस, whatever we're doing, talking to clients, we're running sessions, we're doing consulting assignments, in each and every action that we have, we can easily, at least हम Hmm. अपने आप को तो बता सकते हैं कि am I making an effort to convey meaning and create significance, or am I not? So it's going to be action oriented, and it's tilting more towards the what rather than the Hmm. how. तो ये सारे Hmm. बिजनेस वाले सवाल ना फलसफे में हो चुके हैं. So Hmm. essence और एग्जिस्टेंस, बहस ये है कि पहले क्या होता है. क्या आप पहले एग्जिस्ट करते हो और फिर आप डिस्कवर करते हो कि आपका मकसद क्या है, या पहले आपका मकसद होता है और फिर आप एग्जिस्ट करते हो. अब वो चीजें जो इंसान बनाते हैं, इनका पहले मकसद होता है. पहले मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है, फिर मैं इसको डिजाइन करता हूँ. सो दैट्स ऑलवेज द केस इन थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स मेक. नेचर में जो चीज पाई जाती है उस पर ये डिबेट होता है फिर कि अच्छा ये इसमें एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस है या एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस है. बट इन ऑर्गेनाइजेशन, सो इफ यू आर गोना मेक अ कलेक्टिव, इफ यू आर गोना Hmm. स्पेंड टाइम एंड मेक समथिंग, बिफोर यू मेक इट यू विल हैव अ पर्पस इन योर माइंड कि अच्छा मैं ये लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं ये, other than the business purpose, you will have a purpose in mind. That's how I look at it. I think it's aligned with the theory. तो आपका जो reason for existence है वो क्या है? अगर अगर आपका reason for existence सिर्फ पैसे बनाना है, then you can do that in any organization. So you won't be aligned or वो जो sold on any one particular organization जब तक आप उसके जो purpose है उससे relate नहीं करते, और या वो आपके पर्पस से रिलेट नहीं करता. तो जो जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है जिम कॉलिंस ने, वो है कि आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं. इसको अगर आप 5 दफा पूछें तो यू कैन रीच क्लोजर टू योर पर्पस. ये तरीका एक एक्सरसाइज है कि अच्छा मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग क्यों करता हूँ, ताकि लोगों की फुल पोटेंशियल रीच हो. लोगों की फुल पोटेंशियल Yeah. क्यों रीच हो? बिकॉज मेरा मानना है कि if everyone is the best version of themselves, then we'll live in a happier peaceful world. तो आई थिंक वो आप आहिस्ता आहिस्ता पर्पस तक पहुंच सकते हैं. इट इज ऑल्सो सेट कि हर काम करने से पहले आप उसको क्राइटेरिया यूज कर सकें. क्या इस काम में am I conveying meaning and creating significance? So it's a very good criteria for my decision making as well. तो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में बहुत आपको हेल्प कर सकता है अलाइनमेंट. एंड एक सवाल सिर्फ आपसे, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड, कि पर्पस और विजन की अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है. तो विजन एज आई सी इट इज द बिगर अम्ब्रेला, जिसके अंदर पर्पस भी आता है, वैल्यूज भी आती हैं, गोल्स भी आते हैं. बट हाउ, व्हाट सिग्निफिकेंस इज देयर इन द डिफरेंस बिटवीन द विजन एंड पर्पस? ठीक है, इंटरेस्टिंग. ये बड़ा मुश्किल सवाल है. आई डोंट नो इफ आई नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. विजन आई अंडरस्टैंड इज डायरेक्शन, आई अंडरस्टैंड इज लॉन्ग टर्म. पर्पस इज मोर हियर एंड नाउ. बट इट्स ऑल्सो मे बी. फॉर एटलीस्ट 100 years. सो मैंने जो करना है वो मैंने करते रहना है अपनी जिंदगी पूरा. और पर्पस डिस्कवर करते हैं या क्रिएट करते हैं? डिस्कवर करते हैं. सो मेरा पर्पस अगर है कि मैंने खिदमत करनी है तो वो मेरे अंदर से आया है. अब मैंने खिदमत करनी कैसे है? डू आई वांट टू खिदमत थ्रू बाय मेकिंग कार्स और बाय डूइंग तबलीग? That is something that I need to decide on. But I will do khidmat for my life because it is coming from inside. और फिर विजन आप सेट कर लेते हैं, अच्छा 30 साल में मैंने खिदमत इस तरह से करनी है कि मैंने एक इतनी गाड़ियां बेच दी होनी चाहिए. So that is the distinction I see between purpose and vision. तो आपका विजन जो है वो आपके पर्पस के फुलफिलमेंट का विजन है बेसिकली. Yes, yes, essentially. ठीक है, गुड. आगे चलते. आई थिंक जो क्वालिटीज होती हैं एक गुड विजन की, उस पे अगर डिस्कस कर लें. जैसे आपने कहा था कि एक बिग पिक्चर होनी चाहिए. आई विल एक्चुअली शेयर सम एग्जांपल्स ऑफ सम विजन्स एंड पर्पस एज वेल. तो पर्पस में जैसे आता है टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स इनोवेटिवली, 3M का है, या मैकिंजी का है टू हेल्प लीडिंग कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स बी मोर सक्सेसफुल.
अब ये किस तरह से करना है, ये आप कंसल्टिंग से भी कर सकते हैं, आप HR कंसल्टिंग से भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। और विजन में जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे है कि जी a car in every home, a computer in every home, reaching the moon। 50 साल बाद हम लोग जो है 3M का क्या विजन था? 3M का पर्पस था, विजन आई डोंट नो, to solve unsolved problems innovatively, so it's something that ठीक है, you keep interesting. doing Yeah, this is what you get if you. This is solving unsolved problems innovatively। innovatively. ठीक है, so I just did this to bring ourselves to scale. कि हो सकता है क्योंकि कभी-कभी हम, and especially when we're doing purpose or vision statements, we end up using language which is very grand. ओके, क्योंकि हमने इसी तरह सुना है भाई, हमने तो जितनी भी किताबें पढ़ी यहाँ पे, जितनी भी हमें लिख के मिसालें मिली, उन सब में बड़े बड़े अल्फाज थे अंग्रेजी के और दूर दूर के विजन्स थे और कहानियां थी लीडर्स की। तो कहीं ना कहीं हमारा पहला थ्रस्ट ये होता है कि यार खूबसूरत होना चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए हमारा विजन, राइट? एंड इफ वी मेक अ ग्रैंड विजन, तो इट डजंट मीन कि ग्रैंड विजन के लिए आपको वो टेस्ला के रॉकेट हवा में भेजने। ग्रैंड विजन आपको यहाँ पहुंचाता है। दिस हैपेंस इन अ वेरी ब्रास टैक्स, सिट डाउन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या नीड है कस्टमर की एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो big, grand, rosy, aesthetically pleasing visions can also work for organizations that are working in Karachi, in Lahore, in Islamabad, wherever. You don't need to be GE to have a nice big vision. In fact, you get to where GE is by first having a clear vision and direction. Interesting. And so if I understand correctly, it doesn't have to be very fancy, the language, the as long as it is serving the purpose कि आपने करना क्या है। और कुछ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, आई थिंक आई विल क्लोज ऑन दिस, एंड हम लोग शायद जो इनविजन फ्यूचर वाली डिस्कशन है, वी कैन टेक दैट ऑन अनदर डिस्कशन। कुछ के बड़े फैंसी तो होते हैं मगर वो नहीं होते, प्लीजिंग टू द आई वाले नहीं होते, बहुत क्रूड से भी विजन स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी का एक विजन था टू क्रश एडिडास। इट साउंड्स वेरी नॉट वेरी प्रोग्रेसिव एंड पॉलिटिकली करेक्ट। अच्छा, आपका सिर्फ यही है कि आपने कंपेटिटर को हराना है, बट अगेन इट वर्क। सो एज यू सेड कि बहुत डिफरेंट चीजें डिफरेंट जगहों पे काम करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, द वैल्यूज ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। ये इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं। आई रिमेंबर व्हेन वी वर हैविंग अ डिस्कशन अर्लियर, तो यू शेयर्ड सम टाइप्स। जिस तरह ये एडिडास वाला इज अ सर्टेन काइंड ऑफ विजन, एंड आई थिंक दिस गोज बैक टू वेयर वी स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन, कि in addition to it being direction, it is also inspiration for the people inside the organization. What is going to be meaningful for the people who are working in my organization? तो अगर मुझे ये लगता है कि मेरे इदारे में इस वक्त सारे एनर्जेटिक गंगो किस्म के लोग हैं जो बस चाहते हैं कि छतें खोल दें और किसी को जो है समझ में नहीं आए कि ये इदारा कहाँ से आया और एकदम कैसे ग्रो किया है, तो if I'm gonna rally those people, if I'm gonna take that team to greater heights, then I need a certain kind of vision that resonates with them, that reflects their energies and their vibes and their personalities. एक ऐसे एनर्जेटिक मिलेनियल्स के ग्रुप को अगर मैं अजीब कोई सोक्रेटिस का स्टेटमेंट अपना विजन बना दूं, नो हाई सेल, तो उनको कुछ समझ नहीं पड़ रही, वो बोले भाई किधर आगे फंस गया हूँ मैं, ये क्या काम करा रहे हो, एक्शन बताओ क्या करना है। So it's direction, yes, but it's also inspiration, which means that the vision takes from the people, because those are the people that it needs to inspire. And it sends a message to them कि हमारे लिए this is what is important, this is what we think is close to our hearts, and you need to align yourself with this as well, perhaps. ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ज़्यादा आ गए हैं, आंसर्स कम मिले हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस हेजॉग कॉन्सेप्ट जो जिम कॉलिंस जिसकी बात करते हैं, वो आई रियली वांट टू डिस्कस। सो लेट्स टेक दिस डिस्कशन टू परहैप्स द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Let's do that.